हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन हाफ ईयरली एग्ज़ाम मिड टर्म एग्जामिनेशन का पेपर है ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सो कैटरैक्ट इज द मेन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद, विच इज़ कॉज्ड बाय damage to the cornea. It occurs more often in old age. As one starts growing old, the lens of the eye hardens, loses its transparency and becomes opaque. It obstructs the light rays from entering the eye. The onset of cataract blurs the vision. Sometimes the cataract patient sees multiple images instead of a single object image. Because of the gradual development of cataract, the afflicted person loses his or her vision and the world becomes dark to him or her. The development of cataract is a complex process. However, the following factors can be attributed to its formation. Cataract generally develops in old age, but sometimes children are born with cataract because of hereditary defect. Eye injuries too can cause cataract. People exposed to sun rays for longer period develop cataract earlier than others. Researchers opine that smoke inhaled while smoking carries substances internally damaging the eyes. Ultraviolet radiation, invisible to human eye, are linked to skin cancer. The victim loses vision and the world becomes dark to him. Okay, now first question is, how does one detect cataract in early stage? Early stages में कैसे आप cataract को detect कर सकते हैं? So, the onset मतलब beginning of cataract blurs the vision. जब स्टार्ट होता है तो विजन आपकी ब्लर होनी स्टार्ट हो जाती है. सो बाय ब्लर्ड विजन हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं. वाई डज द लेंस ऑफ आई बिकम ओपेक इन ओल्ड एज? ओल्ड एज में लेंस ओपेक क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ कैटरैक्ट. आंसर द फॉलोइंग. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉज स्किन कैंसर. द वर्ड इन द पैरा 2, सेकेंड पैरा में वो कौन सा वर्ड है? विच मीन्स मेकिंग समथिंग लेस क्लियर एंड शार्प. किसी चीज़ का कम क्लियर और शार्प होना. द ऑनसेट ऑफ ब्लर वो वर्ड है. नेक्स्ट इज इन ओल्ड एज ब्लैंक इज द मेन कॉज ऑफ कैटरैक्ट. ओल्ड एज में मेन कॉज क्या होता है कैटरैक्ट का? आई इंजरी. वो किसी भी एज में हो सकती है. हेरिडेटरी फैक्टर, ये बच्चों के लिए है. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से भी किसी को भी हो सकता है. डैमेज टू द कॉर्निया. सो मेन कॉज इसका डैमेज टू द कॉर्निया है, और जो जनरली ओल्ड एज में होता है. डी ऑप्शन इज करेक्ट. ट्रांसपेरेंट इज द ऑपोजिट ऑफ. पैरा 1 में ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट है ओपेक. नेक्स्ट, हाउ डज द कैटरैक्ट अफेक्ट इट्स विक्टिम अल्टीमेटली? कैसे कैटरैक्ट अफेक्ट करता है विक्टिम को? वो अपनी विजन को लूज करते हैं और वर्ल्ड उनके लिए डार्क हो जाता है. बोथ ए एंड बी करेक्ट है. डी ऑप्शन. एक और पैराग्राफ गिवन है. वुल्व्स, जैकल्स एंड फॉक्सेस all belong to one family, the family of dogs. They are found on all the continents except Antarctica. The legs of the animals in this family are long and well-shaped. The paws have strong blunt claws. All the animals run fast, some at a speed of 65 kilometers an hour. The hair is thick and of various shades of grey or red. Some of the animals are striped. One of the African jackals is called the striped jackal. The African wild dog has black, white and yellow spots. It is the only wild animal that has hair of 3 colors. The largest and strongest animal in the dog family is the wolf. It can run so fast with a goat or sheep on its shoulder that it can hardly catch up with it even on a good race horse. It is very true to say that on shoulder. Okay. It is true to say that the wolf live by its feet. Sometimes it runs 60 kilometers a day in search of prey, and not always does it find it, even running that distance. It is not easy for an animal in the wild to find food. For this reason, when a wolf makes a good kill, it gorges itself. It can eat 10 kilogram of meat at one time. The wolf has very strong jaws. It can crush large bones easily. The jackal is the most cunning member of the dog family. People don't like because it is terrible thief. What cunning it shows. If a jackal wants to catch a crow or a magpie, it lies down by the magpie एक type की bird ही है.
So it lies down on the road and makes it believe it is dead. When the bird sees the jackal, it comes down to peck at the dead flesh. Up jumps the cunning jackal, and that is the end of the bird. There are many tales about the cunning fox, but they are all untrue. The wolf and the jackal are far more cunning than the fox. It is certainly not a capricious animal. It never hunts just to kill. It feeds mainly on barn and field mice. It is a master at catching these rodents that do not do so much damage to farms. Now, on the basis of your reading of the passage, answer the following questions. First is, what physical features of wolves, jackals and foxes make them good beasts of prey? क्या उनके फिजिकल फीचर्स हैं जो उनको एक अच्छा प्रे बनाते हैं? सो फर्स्टली इनके जो लेग्स हैं, इस फैमिली में जो एनिमल्स हैं वो लॉन्ग होते हैं, वेल शेप्ड होते हैं. उनके पॉज में स्ट्रॉन्ग और ब्लंट क्लॉज होते हैं और ये बहुत फास्ट दौड़ते हैं. ये पूरा फर्स्ट का आंसर है. सेकेंड इज, वाई वी कॉल द वुल्फ लिव्स बाय इट्स फीट. हम क्यों कहते हैं कि वुल्फ जो है इट लिव्स बाय इट्स फीट? क्योंकि उसे बहुत लंबी डिस्टेंस कवर करनी होती है. फॉर द रीज़न, एक अपने प्रे को ढूंढने के लिए, कैच अप वेरी, because sometimes it runs 60 kilometers in a day in search of prey. Okay, so it is true to say that the wolf lives by its feet. Next is, why a wolf gorges eat greedily itself. इतनी लंबी डिस्टेंस कवर करने के बाद जब फाइनली उसको एक शिकार मिलता है, देन इट गॉर्जेज इटसेल्फ, वो बहुत ग्रीडीली उसको खाती है. बिकॉज ये होगा, समटाइम्स द वुल्फ रन्स 60 किलोमीटर्स इन अ डे इन सर्च ऑफ फूड एंड नॉट ऑलवेज डज इट फाइंड इवन रनिंग दैट डिस्टेंस. इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनिमल्स, के लिए ईजी नहीं होता वाइल्ड में फूड को फाइंड करना. तो यही रीज़न है कि वुल्फ को जब एक अच्छा किल मिलता है, इट गॉर्जेज इटसेल्फ. यहाँ से यहाँ तक. नेक्स्ट इज, हाउ अ जैकल बिफूल्स अ क्रो. कैसे वो एक क्रो को बेवकूफ़ बनाता है. सो जब भी कोई क्रो उसको दिखेगा, इट लाइज डाउन, नीचे लेट जाएगा बाय द रोड और ऐसे दिखाएगा जैसे वो मर गया है. जब बर्ड आएगी, जैकल को देखेगी तो वो पैक करेगी उस डेड फ्लैश को खाने के लिए, और तभी वो कनिंग जैकल जो है वो जंप करेगा और बर्ड को खा जाएगा. यहाँ से यहाँ तक ये इसका आंसर है. नेक्स्ट इज, हाउ अ जैकल एंड वुल्फ हेल्प द फार्मर्स. फार्मर्स को वो कैसे हेल्प करते हैं. सो ये सबसे पहले तो फीड करते हैं मेनली ऑन बार्न एंड फील्ड माइस. चूहे जो होते हैं वहाँ पर, उन पर. और ये जो रॉडेंट्स हैं, रॉडेंट्स इनके दांत बहुत लंबे होते हैं, आगे के दांत उनको बोलते हैं, जैसे स्क्विरल है, माइस है, जो फार्म को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, उनको भी खा लेते हैं. सो ये इसका आंसर है. नेक्स्ट इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन. अ सिंपल बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग हे, ग्रेन एट्सेट्रा ऑन अ फार्म. फार्म में स्टोर करने के लिए जो सिंपल बिल्डिंग होती है उसे हम बोलते हैं बार्न. ऑड वन आउट, रैट, जैकल, वुल्फ, फॉक्स तीनों ही डॉग फैमिली के हैं एक्सेप्ट रैट. सो ये डिफरेंट है. टाइप ऑफ स्मॉल एनिमल्स दैट नॉ थिंग्स विद देयर स्ट्रॉन्ग फ्रंट टीथ आर कॉल्ड. फ्रंट टीथ बड़े से होते हैं जिससे वो चीज़ों को नॉ करते हैं, कट करते हैं. सो इन्हें हम बोलते हैं रॉडेंट्स. ओके, नेक्स्ट. यू आर प्रशांत और प्रिया, हेड बॉय और गर्ल ऑफ DAV पब्लिक स्कूल भोपाल. आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन. एक नोटिस आपको लिखना है फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्वाइटिंग पार्टिसिपेंट्स को इन्वाइट करने के लिए. सो ये इस तरीके से आप लिखेंगे. बॉक्स के अंदर लिखना है नोटिस को. ऊपर सेंटर में स्कूल का नाम गिवन है, DAV पब्लिक स्कूल भोपाल. देन कैपिटल लेटर में नोटिस, फिर टॉपिक काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन. लेफ्ट में डेट जब आप नोटिस लिख रहे हैं. दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 10th दैट द स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन ऑन दिस डेट. कुछ दिनों बाद की डेट इन द स्कूल प्रीमाइसेस. द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मस्ट गिव देयर नेम्स to their respective class teachers latest by 7th of August. For more details contact the undersigned. और डिटेल के लिए इनको कॉन्टैक्ट करें, प्रशांत और प्रिया, हेड बॉय और हेड गर्ल. ओके, नेक्स्ट. इसके और में क्वेश्चन है, यू आर दीपक शर्मा स्टडिंग इन न्यू एरा पब्लिक स्कूल. यू लॉस्ट योर स्कूल बैग. स्कूल बैग आपका खो गया है. नोटिस आपको लिखना है इन्फॉर्मिंग अबाउट योर लॉस. जो बैग है उसके बारे में इन्फॉर्म करते हुए, आस्किंग for help that from the fellow students and mentioning all the necessary details. Put the notice in a box. बॉक्स में नोटिस लिखेंगे
और जो भी बैग में था वो सब चीज़ें आप उसमें मेंशन करेंगे. सो अगेन स्कूल का नाम, नोटिस, डेट, टॉपिक लॉस्ट 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 या फिर स्कूल बैग लॉस्ट. आई लॉस्ट माई स्कूल बैग इन द स्कूल प्रीमाइसेस या फिर दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आई लॉस्ट माई स्कूल बैग इन द स्कूल प्रीमाइसेस. इट इज़ ब्लू इन कलर, डिस्क्रिप्शन देंगे ब्लू था कलर में. द बैग कंटेन सम बुक्स, बुक्स थी उसमें, लंच बॉक्स था, अ वाटर बॉटल एंड अ फ्यू अदर आइटम्स. एनीबडी हु फाइंड्स इट काइंडली रिटर्न इट टू द अंडरसाइंड. जिसको भी मिले वो इनको वापस कर दें. फाइंडर विल बी गिवन अ ट्रीट इन स्कूल कैंटीन. फाइंडर को एक ट्रीट दी जाएगी स्कूल कैंटीन में, बॉक्स के अंदर लिखना है. देन आपका नाम और क्लास. ओके नेक्स्ट इज यू आर सिमरन, योर ब्रदर इज़ नॉट एट होम. आपका नाम सिमरन है, आपके भाई घर पर नहीं है. यू रिसीव्ड अ कॉल, एक कॉल आपको आती है ऑफ हिज फ्रेंड्स रिगार्डिंग द कैंसिलेशन ऑफ डांस क्लास कैंसिलेशन के बारे में. सिंस यू हैव टू गो आउट, क्योंकि आपको बाहर जाना है, यू विल लीव अ मैसेज फॉर हिम. आप एक मैसेज लीव करेंगे, एक मैसेज आपको ड्राफ्ट करना है अबाउट द सेम इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, छोटा सा एक मैसेज. सो राज सेज हेलो, इज इट दिस कमला नगर? सिमरन येस, मे आई नो हु इज कॉलिंग? आई एम राज, समर्स फ्रेंड, कैन आई टॉक टू हिम? सिमरन सेज ही हैज़ gone to the market with mom and forgot his mobile here, can I pass a message? Sure, I called to tell him that today's class is suspended as our teacher had to go for a family emergency. The cancelled class will be held on Sunday, please inform him of the same. Oh sure, I will, thank you, you are welcome, bye. Okay, so ये मैसेज का फॉर्मेट है. सेंटर में मैसेज, लेफ्ट डेट, इसमें टाइम भी लिखना है आपको जब आप वो मैसेज लिख रहे हैं. डियर समर, your friend Raj from your dance classes called and informed me that today's dance class is cancelled because the teacher has a family emergency. यही पैराग्राफ पूरा जो उन्होंने बताया. इट विल बी हेल्ड ऑन संडे, वो अब संडे को होगी. एंड देन नीचे आपका नाम. ओके नेक्स्ट, इसके और में क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू विजिट यू इन समर वेकेशंस. समर वेकेशंस में अपने फ्रेंड को विजिट करने के लिए आपको इन्वाइट करना है, उसके लिए एक लेटर लिखना है. सबसे पहले आपका एड्रेस, देन डेट. डियर अमन, सब्जेक्ट नहीं आता, इनफॉर्मल लेटर है. डियर फ्रेंड का नाम. द समर वेकेशन ऑफ माई स्कूल हैज़ जस्ट बिगन. होपफुली द समर वेकेशन ऑफ योर स्कूल विल स्टार्ट इन अ डे और टू. ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन आई वॉन्ट टू स्पेंड अ फ्यू डेज टुगेदर एट माई विलेज होम. दैट इज़ वाई आई एम राइटिंग यू दिस लेटर इन्वाइटिंग यू टू कम टू माई विलेज होम दिस समर वेकेशन. As it is summer and it is very hot in your area, so I know you are in extreme trouble. But the weather in my village is relatively mild and pleasant. Moreover, there are many interesting places within a few kilometers of our village that we can visit together. There is a big lake and a very old temple in our village. During this time, various religious festivals are held in our village and a fair is held around it, and fairs are held around it. We will enjoy them together. I shall be highly glad if you come to my village home and spend a few days with me and my family during the summer vacation. I am eagerly expecting a reply from you. With best wishes and love to you, your friend Arnav. Okay. Now next is grammar. Fill in the blanks using the correct form of verb in brackets. My little sister is very naughty. When she came back from school yesterday, she had torn her dress. Rearrange करना है. Got in 1947 independence India. India got independence in 1947. Like the not camel work, the did too. Camel did not like to the camel, sorry, दो बार द है ना. The camel did not like to do the work. 6 to do the did not like to work. The camel did not like to work, या to do एक और होना, to do the work, या फिर did not like to work. फिर एक ये दा नहीं होना चाहिए था, कुछ मिसिंग है इसमें.
या फिर एक द एक्स्ट्रा है. द कैमल डिड नॉट लाइक टू डू द वर्क. यस, डू होना चाहिए, टू डू द वर्क. ओके, नेक्स्ट. यूज हैज़ टू, हैव टू और हैड टू. आई हैव टू कट माई हेयर एवरी मंथ. आई हैव टू. Then I blank repair my bicycle yesterday. I had to repair it. My bicycle yesterday. Now they blank, they have to take the baby to the doctor. They have to. Okay, now read the following extract and answer the questions that follow. अभी ये आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं. So paragraph given है, come and hire me. I cried while in the morning. I was, come and hire me. ये the last bargain से है. I was walking on stone paved road. Sword in the hand of the king in the chariot. In the hand the king came in the chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. Okay, so ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है पोएम. वो किंग को देखते हैं जो कि आ रहा है चैरियट पर बैठा हुआ, स्वॉर्ड इन हिज हैंड. ये पावर को रिप्रेजेंट करता है. और यहाँ पर जो स्टोन पेव्ड रोड है, ये जो राइटर है, पोएट है, उनके स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है. तो वो उनसे खुद को हायर करने के लिए बोलते हैं. सो वो किंग अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी पावर के साथ तुम्हें हायर कर लूँगा. लेकिन किंग के साथ ही उसकी पावर भी चली जाएगी. सो पावर काउंटेड फॉर नॉट. नॉट मतलब नथिंग, उसका कोई भी वैल्यू नहीं है. वो मना कर देते हैं उनको. एंड द किंग वेंट अवे इन चैरियट. वो चैरियट में वापस चले जाते हैं. फर्स्ट इज, व्हाट डिड द पोएट वांट. द पोएट वांटेड टू गेट हायर्ड. वो हायर होना चाहते थे. वॉट डज द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट. किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट करता है पावर को. द पावर काउंटेड फॉर नॉट मीन्स द किंग हैज़ अ लॉट ऑफ पावर. द किंग वॉज पावरलेस. द किंग्स पावर वॉज यूजलेस. द किंग काउंटेड हिज कुड नॉट काउंट हिज पावर. द किंग्स पावर वॉज यूजलेस. नेम द पोएट एंड द पोएम. द पोएट इज द लास्ट बार्गेन. लास्ट बार्गेन and poet is Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore. Next, read the following extract and answer the questions that follow. What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Hundru and cut your right knee. ये उस चैप्टर से है. क्या नाम था उसका, जिसमें जो पर्सन है. ओके, रीड करते हैं. I brought you iodine. I had fixed up a car for you to go to Netherhart the next day, but you couldn't because the pain in the knee. Can't you recall anything? ये जो फ्रेंड है उनका, वो उनको बेवकूफ़ बना रहा था. एक्चुअली एक मेमोरी क्रिएट कर रहे थे जो कभी पर्सन के साथ हुआ ही नहीं. Someone else you know was also in Ranchi at that time, Mr. Dinesh Mukherjee. You stayed in a bungalow. You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a bawarchi. Mr. Mukherjee stayed with his sister. You had a big argument about the moon landing. Remember? I will tell you more. You always carried a bag with your books in it and your sightseeing trips. Am I right or not? Okay. Who, according to the man, had a fall in Hundru? हाँ, बिपिन चौधरी इज लैप्स ऑफ मेमोरी चैप्टर का नाम है. सो पोएट के अकॉर्डिंग जो बिपिन चौधरी है वो हुंद्रू में गिर गए थे, जिसकी वजह से राइट नी पर कट आ गया था. हु अकॉर्डिंग टू द मैन वॉज इन रांची एट दैट टाइम. रांची में कौन था उस टाइम पर, ये भी बिपिन चौधरी ही है. चौधरी, URY. Which of the following information is not provided by the above paragraph about Mr. Chaudhary? कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं है. Mr. Chaudhary loved to read books. बुक्स के बारे में बात हुई है यहाँ पर. बैग विद बुक्स, ठीक है. ही हैड एन एनिमिटी विद दिनेश मुखर्जी. दिनेश मुखर्जी के साथ एनिमिटी तो नहीं बताई गई. समवन ऑल्सो इन रांची, दिनेश मुखर्जी. यू स्टेड इन अ बंगलो. यू से होटल फूड. ओके. ही इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ होटल फूड, ये भी बताया गया है. द इंसिडेंट टुक प्लेस इन रांची, ये भी बताया गया. सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट है. ये कहीं पर नहीं कहा गया कि दिनेश मुखर्जी के साथ एनिमिटी थी, उनकी दुश्मनी थी. नेक्स्ट इज विच वर्ड इन द पैराग्राफ मीन्स कुक. कुक का मतलब क्या है? टू कुक फूड. कुक ही है. कुक, टू मेक. ओके सॉरी, द कुक, बावर्ची. 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 नेक्स्ट,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। ये आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट इज व्हाट आर द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन ऑथर्स क्लाइम इन द लेसन द समिट विद इन। समिट विद इन में कौन सी 3 क्वालिटीज़ थी जिन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया कि जो ऑथर थे वो क्लाइम कर पाए। सो ये 3 एंड्योरेंस, समिट विद इन में जो बताइए एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, जिन्होंने हेल्प किया ऑथर को क्लाइम करने में। नेक्स्ट, इन वॉट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस। कैसे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने एक्सप्लॉइट किया इंडियंस को? टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। देन जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी, जो सामान इंग्लैंड से आता था, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को कम कर दिया, जिससे यहाँ के जो आर्टिसंस थे, बिजनेसेस थे, वो दे गेट रोइंड। सो ब्रिटिशर्स दे इम्पोज्ड हाई टैक्सेस ऑन पीजेंट्स एंड रिड्यूस्ड, पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं सेकेंड, रिड्यूस्ड इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर या फिर बॉट इन मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन एंड इन इंग्लैंड एंड इम्पोर्टेड टू इंडिया। दिस कट थम्स ऑफ एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड रूइंड देयर बिजनेसेस, या फिर आप लिख सकते हैं दिस अफेक्टेड इंडियन आर्टिसंस एंड बिजनेस बैडली, क्योंकि वो चीपर गुड्स होती थी तो लोग उन्हीं को ही खरीदना प्रेफर करते थे। नेक्स्ट इज हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफर्सन नाउ। मिसेस मैकफर्सन अभी कितने साल की थी जब राइटर उनसे मिलने गया था? शी वॉज 101 ईयर्स ओल्ड। कुछ भी याद उन्हें नहीं था। एंड वेयर वॉज शी? वो एक नर्सिंग होम में थी। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम इन बर्लिंगटन। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द क्रिकेट डिमांड फ्रॉम एंट्स। क्रिकेट क्या डिमांड कर रहा था एंट्स से? उसको फूड चाहिए था। द क्रिकेट वांटेड सम फूड फ्रॉम द एंट्स। नेक्स्ट इज व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ। टिली और उनकी मदर ने सुनामी के पहले कुछ साइंस देख लिए थे। तो वो क्या थे? एक तो उन्होंने देखा जो बीच है वो स्मॉलर और स्मॉलर होता जा रहा है, वाटर जो है वो स्वेल अप होने लगा है और वो बीच की तरफ आ रहा है। सो दे सॉ, टिली एंड हर मदर सॉ दैट द बीच was getting smaller and smaller, then the water was swelling and kept coming in, बीच पर आ रहा था। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग, ये सप्लीमेंट्री रीडर से है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स, एनी 3 क्वेश्चंस को आंसर करना है। व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वॉज द यूज़ ऑफ द हम्प। जिन ने क्या कहा? जो हम्प है उसका क्या यूज़ है? वो फूड को स्टोर करने के काम आएगा। इट विल हेल्प द कैमल। द जिन सेड दैट द हम्प विल बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड एंड वो जो कैमल है जो पहले काम नहीं करना चाहता था, बहुत ज़्यादा लेजी था, नाउ इट कैन वर्क फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन विदाउट ईटिंग एनीथिंग। नाउ it can, now the camel can work, camel can work without eating for a long period. Next is why did camel live in the middle of the desert? कैमल मिडल ऑफ द डेजर्ट में रहता था काम को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि वो सभी में लेजीएस्ट एनिमल था। सो द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट टू अवॉइड वर्क। वहीं पर थॉर्न्स खाता था, स्टिक्स, पिकल्स। वाई वॉज इट स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन। गार्डन के एक कॉर्नर में अभी भी विंटर क्यों था? क्योंकि वहाँ पर एक लिटिल बॉय जो एक्चुअली में एक गॉड का मैसेंजर था वो खड़ा हुआ था, क्योंकि डाल बहुत ज़्यादा ऊपर थी तो उस पर वो क्लाइंब नहीं कर पा रहा था। एंड ही वॉज वीपिंग, वो रो रहा था।
तो जो सैडनेस थी उस वजह से गार्डन के उस कॉर्नर में अभी भी विंटर थी. सो बिकॉज it was still winter in one corner of the garden because there was a little boy who was too small to climb up the tree. So he stood there weeping, and because of this sadness there because okay ये हम पहले लिख चुके हैं. ठीक है. नेक्स्ट वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम. वेलू घर से भागकर क्यों आ गया था? क्योंकि उसके फादर उसको बहुत मारते थे. जो भी पैसा वो और उनके सिस्टर कमाते थे, फादर उसको स्पेंड कर देते थे ऑन ड्रिंकिंग. सो वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम बिकॉज हिज फादर यूज्ड टू beat him. His father spent the money. He spent the money earned by Velu and his sisters on drinking. Okay, next. And next answer the following questions in about 120 to 150 words. ये 5 markers हैं. फर्स्ट इज व्हाट मैसेज डज द स्टोरी द सेल्फिश जायंट कन्वे. सेल्फिश जायंट में क्या एक मैसेज कन्वे किया गया है? सेल्फिशनेस एक अच्छी बात नहीं है. लाइफ इज़ बेटर विद जनरोसिटी एंड काइंडनेस. प्लस ये स्टोरी ये भी सजेस्ट करती है कि इफ़ वी गिव हैप्पीनेस टू अदर्स वी कैन ऑल्सो फील हैप्पीनेस इन आवर लाइफ. वी कैन ऑल्सो बी हैप्पी. सो द स्टोरी सजेस्ट दैट if we give happiness to others we can also feel happiness in our life, and also life is better with generosity and kindness and not selfishness. क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टोरी बता देते हैं. इन दिस स्टोरी द giant became truly happy only after he became kind to the children and allowed them to play in his garden. अगर वो नहीं करता ये तो उसके गार्डन में हमेशा ही विंटर ही रहती और कभी भी वो खुश नहीं हो पाता. नेक्स्ट इसके और में क्वेश्चन है, मेंशन द थिंग्स दैट आर क्लियर टू द पोएट फ्रॉम द हाइट एंड दैट आर नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट. कौन सी वो चीज़ें थी जो पोएट को हाइट से क्लियर हो गई थी हाइट पर जाने से, और कौन सी अभी भी क्लियर नहीं हुई थी इन द पोएम ज्योग्राफी लेसन में. तो एक तो हाइट पर जाने से उसे ये क्लियर हो गया था कि जो कंट्रीज़ हैं, सिटीज़ हैं, वो इतनी पॉपुलेटेड क्यों हैं, रिवर्स के आसपास में, वैलीज़ के आसपास में जो बनी है वो. ये भी क्लियर था अर्थ राउंड क्यों है, और क्यों अर्थ के ऊपर सी ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है लैंड से. लेकिन ये अभी भी उसको क्लियर नहीं हुआ था कि अर्थ पर जो हेट का रीज़न क्या है, लोग एक दूसरे को हेट क्यों करते हैं. सो फ्रॉम द हाइट इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. It was also clear that the earth was round and it has more water than land. Number 1. And
from the height it was not clear, but still it was not clear why the men on earth found reasons to hate each other. ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 8th क्लास इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.